اور اس کے ساتھ ہی دفاعی تجزیہ کار عبداللہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا۔ سر، بڑا دھواں خطاب دیکھا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تمام تر ایشوز پر بڑے اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا گیا، بڑی ڈیٹیل سے بات کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے جب صدر ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی اس کے بعد بہت ساری چیزوں کے اوپر میرے خیال میں روشنی ڈالی گئی ہوگی، اور پاکستان کی جانب سے جو مشکلات ہیں پاکستان کو درپیش ان کے حوالے سے بات چیت کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا مقدمہ رکھنا یہی مقصد ہوتا ہے۔ دنیا کو جو درپیش مسائل ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، ان کے درمیان میں ایک رابطہ رکھنے کا بہانہ ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے اس بار جو معاملات تھے وہ فرق تھے۔ دنیا پاکستان کی طرف بڑی جو ہے وہ غور طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ یہ پاکستان کون سا ملک آ گیا جس نے اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو جو ہے وہ ڈھیر کر کے رکھ دیا، اور بھارت کا غرور جو تھا وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ بالکل زیر زمین بوس کر دیا۔ اب پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے کوئی وہ ان کی سوچ کو جاننا چاہتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم کو بہت زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملی۔ بنیادی طور پہ وزیر اعظم صاحب تو پاکستان کے نمائندے ہیں، اصل میں یہ عزت جو ہے یہ پاکستان کے ہر مرد و زن کو ملی ہے، اور میرے خیال میں پوری پاکستان قوم کو اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ دوسری جانب جو ہے میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب نے جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا، جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں، جو اس ٹائم پہ خطے کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پھر پاکستان ایک بڑے قد کے ساتھ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں گیا، ایک تو مارکہ حق میں جیت کے بعد، اور دوسرا جو ہے وہ جس طریقے سے خطے کے اندر پاکستان نے ابھی جو عرب پیننسلا ہے اس کے اندر جو سعودی عرب اور پاکستان کے مابین دفاعی اور اسٹریٹجک شراکت داری ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ اس کے آنے والے وقتوں میں بہت ہی خوبصورت اثرات جو ہے وہ آپ دیکھیں گے، جو نہ صرف ہماری دفاعی اور اسٹریٹجک معاملات کے اوپر بہتری آئے گی، بلکہ میرے خیال میں ہمارے معاشی استحکام کے اندر ایک جو ہے وہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے پوری دنیا کے اندر بالخصوص عرب دنیا کے اندر پاکستان کا مقام جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر جب وزیر اعظم کی تقریر کے چرچے تھے اور لوگ یہ انتظار کر رہے تھے کہ کب پاکستان کا جو موقف ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا جائے گا۔ دہشت گردی سے سب سے زیادہ شکار پاکستان ہے، اور پاکستان کو ظاہر ہے جو درپیش چیلنجز ہیں اس کے اندر امریکہ کے حوالے سے بھی ہم نے اپنی بات جو ہے وہ ان تک پہنچا دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کو بہت حد تک پاکستان کی بات سمجھ آئی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر آبی دہشت گردی جو ہے وہ بھارت نے لانچ کی ہے، اور اس کے علاوہ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، میرے خیال ہے اس سے پہلے UN سے پہلے بھی جو پاکستان کو فائدہ ہوا، میرے خیال میں خارجہ پالیسی کے اندر ایک جناب اسحاق ڈار صاحب کا بڑا کردار ہے، ان کا بھی، فیلڈ مارشل صاحب کا تو ہے ہی، جنہوں نے جو ہے وہ اپنی دفاعی جو اسٹریٹجی ہے اس کے ذریعے دفاعی ڈپلومیسی کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کو میرے خیال میں قائل کیا اپنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسحاق ڈار صاحب بھی مختلف فورمز کے اوپر گفتگو کرتے رہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی جو اب خارجہ پالیسی ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو چکی ہے، اور اس کے اندر جو ہے مغرب اور مشرق دونوں کو ایک بڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں میرے خیال میں اس کے بہتر ثمرات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر، ابھی ماضی قریب کے اندر جس طریقے سے BLA اور مجید بریگیڈ کو جو ہے باقاعدہ دہشت گردوں کی لسٹ میں امریکہ نے ڈالا، یہ پاکستان کی بڑی خارجہ پالیسی کی ایک کامیابی ہے، لیکن اب اس کے اوپر عملی طور پر ہم نے دیکھنا ہے کہ مزید اس میں کوآپریشن کیا ہوگی۔ پاکستان کے جو درپیش مسائل ہیں، جو علاقائی مسائل ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انڈیا کے حوالے سے جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، اور پھر جو اس ٹائم پہ جو قدرتی طور پر جو ہمارے اوپر آفات آ رہی ہیں، جس میں سیلاب ہے، جس کے اندر جو ہے وہ لینڈ سلائیڈنگ ہے، ڈیفورسٹیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی میرے خیال میں دنیا جو ہے پاکستان کو ان پہلے 5 ممالک میں کھڑا کیا ہے جہاں قدرتی جو یہ مسائل ہیں یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار جو ہے کچھ حد تک تو پاکستان بھی ہے، لیکن اس کے اندر بیرونی دنیا بھی جو ہے بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ تو پاکستان میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی بہتر ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی انہی باتوں کی وجہ سے میرے خیال میں دنیا کے لیے ایک آئی اوپنر تھا، اور جس طریقے سے میں یہاں ضرور یہ تعریف ضرور کروں گا وزیر اعظم صاحب کی، جب بھارتی ایک بدماش ٹیلی ویژن نے ان سے ایک بڑا چبھتا ہوا سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں ہم پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی ہے وہ بھارت کی جانب سے اس کو ہم ضرور ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ ان کا جواب جو تھا میرے خیال میں ایک بھارتی میڈیا کو جو ہے وہ خاموش کرا دیا اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ گونگ ہو گئیں۔ تو میرے خیال ہے کہ
इस टाइम तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सिफारतकारी चल रही है और जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उनका सामना किया जा रहा है, और बैरून दुनिया जो है हमारा जो एक इज्जत और वक़ार में जो इजाफा हो रहा है, ये यकीनन एक खुश आइन बात है। लेकिन अब देखना है कि दुनिया कितनी हमारे साथ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, और हमारे साथ स्ट्रेटेजिक और जो हमारे साथ डिफेंस और इसी तरीके से हमारी जो मुआशी मसाइल हैं उनको कैसे जो है वो देखती है। और ख़ास तौर पे अमेरिका के हवाले से, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब ट्रेजरी को जो है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अगर इशारा करें तो जाहिर है पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं ये मुश्किल नहीं है, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी आज से कोई 2 दहाइयों पहले आईटी का एक बहुत बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जो है एक अमेरिकन पॉलिसी में शिफ्ट आया और उन्होंने वो आईटी का बिजनेस जो है वो इंडिया ले गए। उस बिजनेस को पाकिस्तान आते हुए देर नहीं लगती। अगर सदर ट्रंप साहब जो है हमारी बात से कन्विंस हो गए तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके जो है एक बड़ी तादाद में खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इस खिताब से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म ने डिप्लोमेसी के जरिए मसाइल के हल पर जोर दिया और क्लियर कहा कि हम मुकालमे और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरान हल पर इस पर यकीन रखते हैं। सर क्या कहेंगे इससे मुतालिक कि ये पैगाम पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को किस हद तक दुनिया तक पहुँचाता है? देखिए, पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश जो है उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने नाजायज रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिसको वो खुद तस्लीम करते फिर रहे हैं, और फिर भारत को तो देखे ना हजीमत का शिकार होना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि किस तरीके से वो दहशत गर्द भेज रहे हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो आपके बरतानिया में हो या अमेरिका में जो है वो कत्ल करने की साजिशें हों। भारत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो हम ये बता रहे हैं कि हम तसादम नहीं चाहते बल्कि मकालमा चाहते हैं। लेकिन मकालमा जो है एक ऐसे वक्त में जो बराबरी की सतह के ऊपर हो, जो इंसानियत की बुनियाद के ऊपर हो, जो सच्चाई के ऊपर मबनी हो, न कि वो प्रोपोगेंडा के ऊपर हो। भारत ने एक बहुत ही जहरीला प्रोपोगेंडा पिछले कई दिहाइयों से पाकिस्तान के खिलाफ बुन रखा था, जिसमें खास तौर पर जो है वो तेजी तब आई जब हमने देखा कि माजी की हुकूमत जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। उसके नतीजे के अंदर जो जिस तरीके से लोगों के जहनों में जहर उंडेला गया, नतीजा ये हुआ कि वो अपनी ही रियासत जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए। 9 मई जो है वो एक बहुत बड़ा वाकया था जिसको कौम कभी भी फरामोश इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये एक और भी बात है कि दुनिया के अंदर एक और बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी यह है कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर थी, 5th जनरेशन का मतलब तो ये था कि लोगों के अंदर लोगों को बागी किया जाए, और 6th जनरेशन वो वॉरफेयर है जो अमली तौर पर उसके ऊपर अमल करती है। पाकिस्तान ने 6ठी जनरेशन वॉरफेयर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को जो है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को शिकस्त दी है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल में, और दुनिया जो है वो देखती है। और यही वजह है कि भारत जैसा मुल्क जो है वो भी चाहता है कि एक ISI उनके पास हो, एक ISPR उनके पास हो। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि पूरी दुनिया की कुव्वतें मिल के भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ये चाहता है कि देखें, हमने अमन का इससे बढ़कर सबूत क्या होता कि पाकिस्तान ने चाहता तो वो न्यूक्लियर जंग की तरफ मामलात ले जाता, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल किसी किस्म की जो है वो गैर जिम्मेदाराना जो है वो काविश नहीं की, बल्कि पाकिस्तान जो है वो अमन की बात करता रहा। और जब अमेरिका ने इंटरवीन किया तो पाकिस्तान ने जो है फौरन लब्बैक कहा। पाकिस्तान चाहता तो भारत की वो धुलाई करता कि भारत को अभी पता चलता कि आधा भारत जो है वो विधवा हो चुका होता, लेकिन मसला यहाँ ये नहीं है। मसला यहाँ ये है कि पाकिस्तान ने जैसे ही अमन की बात हुई पाकिस्तान ने लब्बैक कहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी एक अच्छे मरासिम चाहता है, लेकिन अगर दहशतगर्द इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भेजते रहेंगे अफगानिस्तान के जरिए तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए कोई चॉइस नहीं रह जाएगी, बल्कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को जो है अपनाया जाएगा, और फिर जो भी तरीका होगा उसके लिए हमने अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है और उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पाकिस्तानी फौज पुरअज़म है, पाकिस्तानी मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया है जिसका पूरी दुनिया ने इसका इदराक किया, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान की कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब दुश्मनों के चुंगल से निकल रही है। उसको समझ आ रही है कि पाकिस्तान को एक सोचे समझे मंसूबे के जरिए जो है अवाम और रियासत के दरमियान में जो है कदूरतें फैलाई गई, जो वक्त के साथ साथ जो है वो दूर हो रही हैं इंशाअल्लाह ताला। और वज़ीर आज़म साहब का जो अमन का पैगाम है मेरे ख्याल में दुनिया ने देख लिया है,
और हम जो है वो अमन के दाई हैं। जहां भी यूएन पीस मिशंस होते हैं, पाकिस्तान उसमें फौजें भिजवाता है और ये फौजें जो है हमेशा एक बरतर किरदार अदा करती हैं, बल्कि जो यूएन के चार्टर से हट के भी जाके काम करती हैं। खासतौर पर सोमालिया का अगर वाकया देख लें, जिसके अंदर जो है बाकायदा पाकिस्तान ने जो है अमेरिकन फोर्सेस को रेस्क्यू किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके अंदर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का किरदार पूरी दुनिया के अंदर, ये एक बहादुर फौज है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह के मोटो पे कायम है। और मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाला वक्त जो है उसमें दुनिया के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से होकर गुजरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम के मुत्तहिद होने और भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का जिक्र किया, क्या इससे दुनिया को ये पैगाम गया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा? ये भी बताइएगा सर कि भारत के 7 तैयारे गिराने का जिक्र अक़वाम मुत्तहिदा में करना ये कितना अहम था? देखिए, अभी भारत के 7 तैयारी गिराने का जिक्र करने से पहले आपने देखा 2 दिन पहले जो है 2-3 दिन पहले जब जनरल किदवाई, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन को एक वक्त में कमांड करते रहे, बहुत ही अहमियत की कमांड है और जिससे तमाम हमारे मिसाइल प्रोग्राम, जिसको दूसरे लफ्जों में कहा जाए, तो ये उन्होंने बाकायदा जहाज़ों के टेल नंबर तक जो है वो बता दिए, जिसके ऊपर अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और 7 के 7 जहाज़ों का उन्होंने बताया, जिसमें 4 रफेल जहाज थे। अब ये बात जो है ये ऐसी चीज है, इसको कहते हैं उर्फ आम में, हमारे पास उनके सिग्नेचर्स हैं और वो हम पूरी तफसील, हमारे पास पूरी वीडियोस मौजूद हैं और इसको भारत नहीं झुटला सकता, इसका पूरी दुनिया नहीं झुटला सकती। देखें, भारत अपनी कौम को उल्लू बना सकता है, लेकिन वो दुनिया को जो है वो आंखों में धूल नहीं झोंक सकता, क्योंकि दुनिया की सैटेलाइट सिस्टम्स मौजूद हैं। अमेरिका के पास भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, उनको मालूम है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पलंदा है भारत, और भारत जो है वो गलत बात कर रहा है। इस वजह से जो ऐसे टाइम पे, तो आप देख लीजिए कि वहां भारत के इस टाइम पे जो वजीर आजम हैं वो कहाँ नजर आ रहे हैं। एक तरफ उनके लद्दाख में आग लगी हुई है, वहां जेन जी जो है वो सरापा एहतजाज है, वहां लोगों को मारा जा चुका है और यूनाइटेड नेशन में अमन की बातें हो रही हैं। और भारत किस मुंह से जाएगा? उसका तो मुंह जो है वो रुसवा इतना हो चुका है कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत के हवाले से जो पूरी बात की, 7 जहाज़ों के गिराने की बात की, हम अपने सबूत शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं और हम जो है वो इस जंग को मजीद बढ़ा सकते थे अगर हम चाहते, लेकिन हम जो है वो जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी जानिब आप देखें कि एक ऐसे वक्त में जब सिख यात्री जो हैं वो बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकारीब करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आना चाहते हैं, उनके गुरुद्वारे मौजूद हैं, उनकी मजहबी जो रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं, उनको वीज़ा ना दे के भारत क्या साबित कर रहा है? ये जमहूरियत है? लानत है ऐसी जमहूरियत के ऊपर। भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहता है और वो लोगों को जो है मजहबी आज़ादी देने से जो है वो गरेजा है। और वो क्यों मजहबी आज़ादी देने से गुरेज़ा हैं और इस खिताब से मुतालिक मौक़िफ़ दे रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे दिफ़ाई तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब। आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया।